Hello dear friends, this is Priyam and welcome to e-learning. So we have completed question number 16 to question number 30 in the previous video. Now we are going to continue from 31 to 50. So let's start. Storm in a teacup is. It is an idiom. What does it mean? Much hue and cry over family matter. Much hue and cry over religious matter. Much hue and cry over a little matter or none of these. सो इस इडियम का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, जिस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसको लेके इतनी लंबे ड्यूरेशन तक बातचीत करना. इट इज अ सिचुएशन इन विच people are very angry or upset about something that is not important. जो कोई भी चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको उतनी इंपॉर्टेंस दे के परेशान होना या गुस्सा होना. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Much hue and cry over a little matter. Question number 32. Mark the part which contains an error. If there is no error, mark D as your choice. Option A, half of. B, the land was. C, given to the charity. Or option D, no error. So here the statement is absolutely correct. Half of the land was given to the charity trust. So we will choose here option number D, no error. Question number 33. Change the voice. I found the boy sleeping. It will be converted in passive voice. Option A, the boys were found sleeping. Option B, the boys are found sleeping by me. Option C, the boys sleeping were found by me. Or option D, the boys found me sleeping. So this one is given in past indefinite, so it will be converted in past perfect and the object will be converted as subject. So the answer is the boys were found sleeping. Option number A. Come on the next question. Question number 34. Why are you wasting your time? You have to convert in the passive voice. Option A, why is your time wasted by you? Option B, why is your time wasted by me? Option C, why is your time being wasted by you? Or none of these. So जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर के साथ हमेशा बीइंग प्लस पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय you. Question number 35. Choose the most appropriate preposition to fill the blank space. Question. Your baby is sleeping. Please put a blanket dash the baby, on the baby, with the baby, in the baby or over the baby. So here the correct preposition will be over the baby. Question number 36. The positive of better is. Option A, ill. Option B, will. Option C, best. Or option D, well. So here we have to find out the positive. हमें positive बनाना है इसका. So positive होगा well. Well, better, best. और good, better, best. So option D is correct. Question number 37. What is the past participle of cut? Cutting, cutted, cut और none. सो नोटिस करने वाली बात ये होती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम तीनों फॉर्म्स में सेम लिखते हैं. कट, पुट, शट. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी, कट. क्वेश्चन नंबर 38. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल वर्ब. यहाँ आपको सुटेबल वर्ब के साथ इसे फिल करना है. एज ही डैश नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर. जैसे कि वह वहाँ नहीं था, मैंने उसकी सिस्टर से बात किया. व्हाट इज द करेक्ट आंसर विल बी इज, वॉज, विल बी और वुड बी. सो द करेक्ट वर्ड विल बी वॉज. 39. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल वर्ब. यह एक कंडीशनल सेंटेंस है. If he dash I would have helped him comes
come, came or had come. So here will be had come. Why? Because it is a conditional sentence और conditional sentence में हम had का use करते हैं. If he had come, I would have helped him. अगर वह यहाँ आया होता तो मैंने उसकी क्या किया होता? मदद किया होता. ये कंडीशनल है. क्वेश्चन नंबर 40, चेंज द वॉइस. ये पैसिव है, आपको इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है. I found myself being laughed at by the class. Option A, the class is found to me laughing. The class was found to me laughing. I found the class laughing at me, or the class found me laughing. So here we have used here being, so it will be removed from this one, and laughed will be converted in continuous. So the answer will be I found the class laughing at me, and if you will convert in passive, so it will be I found myself being laughed at by the class. So option number C is correct. Question number 41. The noun wave is from the verb weave, weben, all और वेब. वेव है, इसका मतलब होता है बुनाई किया. सो हम नाउन पे जाएंगे तो इसका मतलब होगा वीव, बुनाई करना. वीव, वोव एंड वोवन इज द फॉर्म ऑफ द वीव. सो करेक्ट आंसर विल बी ए, वीव. 42. Fill in the blanks with a suitable verb. He will come if you, him. यहाँ फ्यूचर हमने दे दिया है, तो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसके साथ हम दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. सो हियर इनवाइट, इनवाइट्स, इनवाइटेड और विल इनवाइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी इनवाइट. इफ he will come if you invite him. Question number 43. Anis Salim won the Sahitya Academy Award in 2018 for. अनीस सलीम जो कि एक इंडियन राइटर हैं, यह एक इंडियन राइटर है. इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. सो इनकी ऐसी कौन सी बुक है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया? द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, डेयरी मेट, मिल्कमैन और द घोस्ट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स. इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे वैनिटी बैग, द स्मॉल टाउन सी. क्वेश्चन नंबर 44. विच नोबेल प्राइज विनर डाइड ऑन अगस्त 11, 2018? ऐसे कौन से नोबेल प्राइज विनर राइटर थे जिनकी डेथ 11 अगस्त 2018 को हो गई थी? सो फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में बता दूं कि इनकी जो डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 को, वो हुई थी लंदन में. ये हैं मिस्टर WS नायपॉल. ये एक ब्रिटिश राइटर थे. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45. हु इज द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री? इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में पहले ऐसे कौन थे जिन्होंने ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट कहा गया था? पोएट लॉरेट मतलब राष्ट्र कवि घोषित किया गया था. बेन जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन और नन ऑफ दीज. सो हियर द करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको जॉन ड्राइडन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि इनकी रचनाएं क्या है, इनकी बायोग्राफी क्या है. ऑप्शन नंबर 46. मैच द फॉलोइंग. हु हैज रिटन एंड व्हाट इज द बुक? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? ड्राइडन. ऑप्शन बी, फादर ऑफ इंग्लिश इसे किसे कहा जाता है? बेकन को. फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर किसे कहा जाता है? इब्सन को. और फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसे कहा जाता है? डेफो को. सो जितने ऑप्शंस दिए गए हैं ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट.
ड्राइडन को हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं, बेकन को हम फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं, इब्सेन को हम फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर के नाम से जानते हैं, और डेफो को हम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल के से जानते हैं. सो ऑल द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. मैच द फॉलोइंग. रिदम क्या होता है, राइम क्या होता है, रेफरेंट क्या होता है और स्कैंसन क्या होता है. सो रिदम का मतलब होता है द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. राइम क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड. रेफरेंट रिपीटेड वर्ड्स, फ्रेज, लाइन और लाइन्स इन अ पैटर्न. एंड स्कैंसन क्या होता है, द एनालिसिस ऑफ पोएम्स मीटर. जितने भी वर्ड्स एंड उनसे रिलेटेड मीनिंग दी गई है वो सारी करेक्ट हैं. रिदम का मतलब होता है रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस का रिकरेंस किया जाता है. एंड में जो साउंड राइमिंग वर्ड्स के यूज़ किया जाता है उसका मतलब भी करेक्ट है. रिपीटेड वर्ड्स, जहाँ बहुत सारे वर्ड्स जो है रिपीट किया जाते हैं, फ्रेजेस रिपीट होते हैं, लाइन या पैटर्न का रिपीट होता है, उसे हम रेफरेंट भी कहते हैं. और पोएम्स ने कौन कौन से मीटर का यूज़ अपनी अपनी पोएट्री में किया है, अपनी अपनी रिटन वर्क में किया है, उसको हम स्कैंसन कहते हैं. सो ऑल द ऑप्शन आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48. हु रोट अ ट्रेन टू पाकिस्तान. अ ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है. कमला मार्कंडेय, अनीता देसाई, किरण देसाई और खुशवंत सिंह. So, A Train to Pakistan is written by an Indian writer. He was not only a writer but also a lawyer, journalist, diplomat, politician. So, his name is Khushwant Singh. Option number D. Khushwant Singh has written the book A Train to Pakistan. Question number 49. कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू. कैम्ब्रिज स्कूल कौन से सेंचुरी में रेफर्स किए जाते हैं. अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्स, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी नोवेलिस्ट्स, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट्स और अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिसिस्ट. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिसिस्ट. लास्ट क्वेश्चन इज दिस. पैरेबल. पैरेबल का मतलब होता है ये जो नीति कथाएं होती हैं ना, जो हम सुनते आए हैं हमेशा, उसमें जिसमें जानवरों का मोस्टली यूज़ किया जाता है. ये होता है एक शॉर्ट मोरल स्टोरी ऑफन यूज्ड विथ एनिमल्स कैरेक्टर. अ पोएम इन पैराग्राफ्स, अ बुक इन एन एपिक, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल और अ क्योर ऑफ पैरालिसिस. सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल. मतलब मोरल कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी बहुत कहानियाँ होती हैं, इसे बहुत लंबी नहीं लेके जा जाती हैं, जिसमें एनिमल्स के कैरेक्टर को यूज़ किया जाता है और जिसे हम बहुत पहले से सुनते आए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to question number 50. We will continue 15 to 20 questions in the next video. I hope you liked it and please keep watching e-learning. Thank you.